नमस्कार। और 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिन के अवसर पर हमारी गुजरात की IYA टीम बहुत ही गर्व महसूस करती है। इतने सालों से हम जो योग का व्याप है जो विश्व भर में अब है, वो अब हम ओन अप कर रहे हैं प्राइड से। एंड वी आर स्प्रेडिंग द मैसेज ऑल ओवर द वर्ल्ड लाउड एंड क्लियर। सो इट इज वन ऑफ द फैंटास्टिक मूवमेंट्स फॉर द कंट्री। 11 साल से हम योग दिन को बहुत बड़े पैमाने पे सेलिब्रेट कर रहे हैं और इस बार भी करेंगे और आगे भी करेंगे। तो आइए, इस अवसर पे हमारे टीम ने एक बहुत ही यूनिक प्रोग्राम डिजाइन किया है। वी विल टॉक अबाउट अलग अलग लाइफ के पहलुओं में, चाहे वो एज हो, जेंडर हो या प्रोफेशन हो, हर जगह पे योग हमें कैसे मदद करता है। तो इस थीम को लेके एक बहुत ही सुंदर कार्यक्रम हमने आयोजन किया है आप लोगों के लिए। और हमारे वाइस चेयरपर्सन, सीनियर वाइस चेयरपर्सन श्री मित्तल बहन कोटीचा को मैं इनवाइट करूंगी, आपको एक वेलकम एड्रेस देंगे और वहां से हम कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। वेलकम मित्तल बहन। Namaskar. Thank you, Molly. And all this credit goes to our Honorable Prime Minister, who has started, and his small thought came to this level. So we are so thankful to our Honorable Prime Minister for this. Namaskar and very warm greetings to everyone present here today. It is my absolute honor to welcome you all to the 11th International Day of Yoga, a day that has grown into a global celebration of balance, wellness, and unity. I extend my heartfelt gratitude to our chairman, Sri Shailesh Ji Rathod, and all my esteemed colleagues in the Gujarat chapter, and each one of you who have joined us today with such a warmth and commitment, virtually yet so meaningfully connected. This year, we gather under the powerful Yoga for One Earth, One Health, a reminder that true wellness is not isolated but shared, not just personal but global. So, and as we embrace this theme, we also celebrate a deeper truth, yoga in all facets of life, and we will going to continue in the program ahead. Yoga is just a morning ritual on a mat. It's not really that. It is the way of living, a stage of being. It reflects in how we breathe through our stress, how we pause to listen, and how we lead with compassion, how we remain centered in the chaos of the world. From this way, we speak, eat, work, think, and even rest. Yoga gently waves itself into our every corner of life, guiding us to live consciously, harmoniously, and purposefully. As a part of Indian Yoga Association Gujarat chapter, we feel privileged to promote not just the techniques of the yoga, but its philosophy, one that teaches us inclusivity, inner strength, and holistic health. Let today be celebration not just for the practice, but the transformation of the yoga offers. Let us continue to carry its light into our homes, communities, workplace, and hearts, not only on this day, but every day. So thank you all for your presence, your energy, and the shared purpose. Together, let's create a healthier self, a healthier society, and a healthier earth. Wishing you all a joyful and mindful International Day of Yoga. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you so much. Thank you, Molly. थैंक यू मित्तल बहन फॉर द वंडरफुल एड्रेस। और अब मैं आप सब लोगों को इंट्रोड्यूस करवाऊंगी आज के हमारे एंकर
और हमारे जॉइंट सेक्रेटरी श्रीमती हीनल ठक्कर से। हीनल जी, वेलकम, आई वेलकम यू टू द प्रोग्राम। और फिर थैंक यू, ये थैंक यू प्रोग्राम सो का सूत्रधार आप ही बन जाइए। बट हीनल जी एंकर के रोल में आपके सामने प्रस्तुत हो उसके पहले वो योग के और योगा थेरेपी के एक्सपर्ट है, तो हम उनसे भी उनके नॉलेज का भी एक लाभ लेंगे। और हिना जी, आपको हमने सोचा बिकॉज यू हैव बीन वर्किंग फॉर सो मेनी इयर्स कॉर्पोरेट वेलनेस के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं हम। पहला मेरा सवाल आपसे ये है कि आजकल का जो कॉर्पोरेट लाइफस्टाइल और कल्चर है, तो एक्सट्रीम स्ट्रेस में लोग काम कर रहे हैं, तो उनके लिए और जो लंबे समय तक कंप्यूटर के सामने स्क्रीन के सामने घंटों तक बैठे रहते हैं, तो उनके लिए योग कैसे मदद रूप हो सकता है? कैन यू थ्रो सम लाइट ऑन दैट, हीनल जी? नमस्ते, माई सेल्फ हीनल ठक्कर। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सभी को हैप्पी इंटरनेशनल योगा डे, हैप्पी 11th इंटरनेशनल योगा डे विश करना चाहूंगी। एंड जो आपका क्वेश्चन है मौली जी, वो बहुत ही वैलिड क्वेश्चन है और मैं इसका आंसर बिल्कुल दे सकती हूँ बिकॉज अभी अभी मैं उसी टॉपिक के ऊपर रिसर्च भी कर रही हूँ। जो कॉरपोरेट पीपल है उन लोगों को कम से कम 8 to 9 आवर्स के लिए अपनी चेयर पे एक ही सीट के ऊपर कंटिन्यूअसली स्क्रीन के सामने बैठे रहना पड़ता है। उन लोगों की लाइफ में और भी बहुत सारे स्ट्रेस होते हैं, जैसे कि उन लोगों के पास डेडलाइंस होती है अपने कलीग्स के साथ, कलीग से आगे आने के लिए, प्रमोशंस के लिए हैवी वर्कलोड्स होते हैं और बहुत सारे स्ट्रेस होता है, जिसकी वजह से उन लोगों का ऑल द टाइम स्ट्रेस लेवल हाई रहता है। और ये सारी प्रॉब्लम्स हम लोग क्यों बेयर करते हैं? ताकि हम लोग अपनी फैमिली लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर सके। बट पूरे दिन का जो हमारा वर्कलोड होता है, जो फटीग होता है, उसके बाद हमारा फैमिली के साथ बिहेवियर भी बहुत ज्यादा खराब हो जाता है बिकॉज हम थके हारे घर आते हैं। ये सारी प्रॉब्लम्स को लेकर अभी अभी हमने एक रिसर्च किया है कि क्या इन सब में योग मदद कर सकता है या नहीं, और हमारा रिसर्च बहुत ही पॉजिटिव रहा है कि कैसा होता है जब हम लॉन्ग टर्म तक हमारी बॉडी में स्ट्रेस क्रिएट होता है, वो स्ट्रेस क्रॉनिक स्ट्रेस में कन्वर्ट होता है और क्रॉनिक स्ट्रेस की वजह से बॉडी में कॉर्टिजोल लेवल बढ़ता है। कॉर्टिजोल लेवल जो है वो एड्रेनालिन ग्लैंड से निकलता है और वो हमारी ब्लड स्ट्रीम के अंदर ऐड हो जाता है, तब हमारे मसल के अंदर स्टीफनेस बढ़ जाती है। जो लोग कॉर्पोरेट में कंटिन्यूअसली बैठे रहते हैं, जिनका स्ट्रेस लेवल ज्यादा होता है, उन लोगों की वैसे ही फ्लेक्सिबिलिटी कम होती है और स्ट्रेस बढ़ने की वजह से उनकी मसल स्टीफनेस बढ़ती है। और ये दोनों ही वाइस वर्सा है, जब हमारे मसल स्टीफ होते हैं तब उसकी वजह से भी हम हमेशा स्ट्रेस में रहने लगते हैं। तो अगर हम लोग कुछ योगा की मूवमेंट, कुछ मोबिलिटी आसनास, कुछ फ्लेक्सिबिलिटी आसनास अगर करते हैं, सूक्ष्म व्यायाम करते हैं, तो हमारी जो मसल स्टीफनेस है वो धीरे धीरे कम होती है। अगर मसल स्टीफनेस धीरे धीरे कम होती है तो हमारी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है एंड हमारा स्ट्रेस लेवल धीरे धीरे कम होता है। अलोंग विद दैट, अगर हम कुछ मेडिटेशन, प्राणायाम और माइंडफुलनेस की एक्टिविटीज करते हैं तो भी हमारा जो स्ट्रेस लेवल है वो धीरे धीरे कम होता है और हमारी वर्क एफिशिएंसी इंप्रूव होती है। हमने हमारे रिसर्च में देखा कि कुछ मेडिटेशन टेक्निक्स जैसे कि त्राटक क्रिया है, योग निंद्रा है, एंड कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस जैसे कि योगिक श्वसन, भस्त्रिका, भ्रामरी प्राणायाम, ऐसे कुछ प्राणायाम को उनकी लाइफस्टाइल में ऐड करने से उन लोगों की वर्क एफिशिएंसी में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट आया है, जिससे जो कॉरपोरेट है उनको भी बेनिफिट होता है और जो एम्प्लॉय है, जो काम पहले वो 10 घंटे में फिनिश करते थे, वही काम वो लोग 6 से 7 घंटे में फिनिश कर सकते हैं। थैंक यू। तो ये तो बढ़िया जवाब था, 10 घंटे का काम 6 घंटे में कर लेंगे, फिर कॉर्पोरेट उनको और काम दे देंगे। नो, यस। सो नो, फैंटास्टिक आंसर इन टर्म्स ऑफ कॉर्टिसोल एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट। अब आपने ये बताया कि जो नेगेटिव में चल रहा है, जो स्ट्रेस है, इतने घंटों का स्क्रीन टाइम है, उसको कैसे मैनेज करें? जैसे आपने बताया त्राटक है, योगा निद्रा है, ये सब। बट अभी हम बात करेंगे कि पॉजिटिव में अगर जाना है, पीक परफॉर्मेंस की तरफ जाना है, तो उसके लिए हम उनको क्या योग के प्रैक्टिसेस बता सकते हैं?
जब भी हम हमारी लाइफ में स्ट्रेस आता है या कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी सिचुएशंस आती है, तब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हाउ वी रिएक्ट इन दैट सिचुएशन। वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छी जब सिचुएशन होती है, जब हम खुश होते हैं, तब हम लोग स्टेबल रह सकते हैं। बट जब लाइफ में प्रॉब्लम्स आती है, जब स्ट्रेस आता है, जब कंपटीशन होती है, जब हमारे ऊपर हमारे बॉस या कोई भी गुस्सा करता है, उस टाइम पे आपको क्या रिएक्ट करना है, कैसे स्टेबल रहना है, क्या आगे आपको क्या डिसीजंस लेने हैं, उन सभी के लिए आपको आपका मन शांत चाहिए। और योग आपका मन शांत करने में बहुत हेल्प करता है। कुछ लोगों को लगता है कि मैंने एक हफ्ता योग किया, मुझे तो कुछ फायदा नहीं हुआ। बट योग इज ए लॉन्ग टर्म स्लो प्रोसेस एंड स्टेडी प्रोसेस। उसका आपको डायरेक्ट बेनिफिट नहीं दिखता है, वो इनडायरेक्टली आपकी लाइफ पे इफेक्ट करता है, आपके माइंड पे अफेक्ट करता है। एक बार हम योग प्राणायाम मेडिटेशन करना स्टार्ट करते हैं, उसके बाद हमारा माइंड धीरे धीरे स्टेबल होने लगता है, मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। हम लोग अपने आप को ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं। सीधा रिएक्ट करने की जगह पे हम लोग ऑब्जर्व करना स्टार्ट करते हैं कि ये सिचुएशन है, हाउ शुड आई रिएक्ट, मुझे आगे क्या करना चाहिए, मुझे कौन सा डिसीजन कब लेना चाहिए। इन सभी में योग प्राणायाम मेडिटेशन हमारी हेल्प करता है। थैंक यू सो मच मौली जी। इतना डिटेल में हमको समझाने के लिए थैंक यू। और जो आप व्यूअर्स हैं और जिनका लाइफ, मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं जो योग प्रैक्टिस को अभी अपना रहे हैं, पर उनका मेन प्रोफेशन इज इनटू अ कॉर्पोरेट लाइफ। तो हीनल जी के जो भी सुझाव है उस पे जरूर आप थोड़ा ध्यान दें और सीखें। सो हीनल जी, थैंक यू फॉर दिस। और अभी कार्यक्रम आपके हाथ में, आई हैंड इट ओवर टू यू। वेलकम टू द प्रोग्राम। थैंक यू सो मच मौली जी। आई वुड लाइक टू वेलकम एवरीवन ऑन दिस प्रोग्राम। अभी हमारे साथ बहुत सारे और भी पार्टिसिपेंट्स जुड़े हुए हैं जो योगा के एक्सपर्ट है। आज उनमें से एक और एक्सपर्ट जिल पटेल के साथ हम बात करेंगे। शी इज अ गुड योगा एक्सपर्ट, योगा थेरेपिस्ट। हम उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे। आई वुड लाइक टू वेलकम यू जिल। थैंक यू। जिल, मुझे आपसे कुछ पूछना है रिलेटेड टू वुमेन्स प्रॉब्लम। वुमेन की लाइफ में वेरियस स्टेजेस होते हैं, जैसे कि मेनोपॉज, प्रेगनेंसी, ऐसे अलग अलग स्टेजेस आते हैं। तो उस स्टेजेस के बारे में मुझे आपसे योग कैसे हेल्प कर सकता है, उसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करना है। जीवन के विभिन्न जो चरण होते हैं, जो स्टेजेस होते हैं, जैसे कि गर्भावस्था हो गया, मेनोपॉज हो गया, मासिक जीवन हो गया, इन सभी में योग की क्या क्या भूमिका है और योग हमें उसमें कैसे मदद कर सकता है। नमस्ते टू एवरीवन। सभी को 11वां इंटरनेशनल योगा डे की बहुत सारी शुभेच्छाएं। और सबसे पहले तो ये जो वुमन का जो टॉपिक है, जिस पे मैं अभी रिसर्च भी कर रही हूँ, मेरा पीएचडी वर्क भी चल रहा है, जो मेरा वन ऑफ द फेवरेट सब्जेक्ट है। और मैं ऐसा मानती हूँ कि ये जो फेज है, मेंस्ट्रुअल वाला, प्रेगनेंसी वाला और मेनोपॉज, वो एक वाइटल रोल है जो वुमन, सभी सभी स्त्री की जीवन में ये बहुत वाइटल रोल प्ले करता है। पर हमें उसको बैलेंस कैसे करना है वो हमें योग सिखाता है। जैसे योग भी हमारे जीवन में एक लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, या फिर बोलते हैं हम कि उसका पूरा हमें फिजिकल से हमें स्पिरिचुअल लेवल तक हमें लेके जाता है योग प्रैक्टिस। तो ये जो तीनों फेज है वो हमारे जीवन में बहुत महत्व रोल प्ले करते हैं। और उसमें भी हम देखते हैं कि बाल्य अवस्था से लेके वृद्धावस्था तक, जब मेनोपॉज आता है तभी ये सब फेज चलता है। तो सबसे पहले तो जब जब वो चाइल्ड है, जो बेबी गर्ल है, वहां से ही उसको योग की प्रैक्टिस या फिर वो हम स्टार्ट करते हैं, तो उसको वो धीरे धीरे हेल्पफुल हो जाता है। और उसका जो इमोशंस है, फिजिकल मेंटल लेवल, वो हार्मोनाइज होता है। हमें अलाइनमेंट और हार्मोनाइज करने की बहुत जरूरत है। और हम बोलते हैं मैप अलाइनमेंट, माइंड, इमोशंस एंड बॉडी अलाइनमेंट। सबसे पहले तो ये तीनों फेज में जो इमोशंस है, हमारे भावना, जो हार्मोन लेवल है, वो बहुत ज्यादा बैलेंस रखने की जरूरत है। क्योंकि कॉन्स्टेंटली, जैसे
ये तीनों फेज में हमारे हार्मोन इम्बैलेंस होते रहते हैं, कॉर्टिसोल लेवल अप एंड डाउन रहता है, कभी हम खुश होते हैं, कभी हम दुखी हो जाते हैं। तो फ्लक्चुएशन सबसे ज्यादा वुमन की लाइफ में रहता है, क्योंकि वो एक इमोशनल बेस पे वो उनका थोड़ा डोमिनेंसी रहता है। बोलते हैं ना कि भावना उनकी ज्यादा यू नो ट्रिगर हो जाती है कोई भी चीजों में। तो हमें योग जो है, योग की सभी प्रैक्टिसेस है, वो हमें फिजिकल से हमें इमोशंस लेवल तक हमें बैलेंस करती है। और उस वो करते करते हम खुद एक अवेयरनेस के साथ योग प्रैक्टिस के आगे बढ़ते हैं, और धीरे 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 उसका मेनोपॉज पीरियड तक हम उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं इस चीज को। Thank you, Zil. Thank you so much. One more question. I would like to add something to this. क्या आप कोई ऐसा प्राणायाम और ध्यान अभ्यास सुझा सकते हैं जो विमेन्स के लिए और उनकी लाइफ स्टाइल को बढ़ाने के लिए, गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए हेल्प कर सके? ऐसे हमारी योग प्रैक्टिस अभ्यास में तो यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार आसन धारणा ध्यान समाधि, वो जो अष्टांग योग है वो हम कर सकते हैं। पर हम फिजिकल लेवल से देखते हैं तो हम हर एक आसन के साथ हमें ब्रेथ को कनेक्ट करना है, या फिर हम कोई भी वर्किंग है या हाउस वाइफ है, तो उनको तो सबसे पहले यही इनिशिएट करना है कि वो अपने लिए टाइम निकाले योग प्रैक्टिस के लिए। और सेल्फ अवेयरनेस बढ़ाने की बहुत जरूरत है। जैसे ब्रीदिंग प्रैक्टिस है, उसमें ब्रीदिंग प्रैक्टिस करने के बाद वो प्राणायाम की ओर जाए, नाड़ी शोधन है, भ्रामरी है, तो वो हर रोज प्रैक्टिस में लाना है। उसके साथ साथ हमें थोड़ा ध्यान करना है, हमें थोड़ा त्राटक करना है। ध्यान में भी सेल्फ मेडिटेशन होता है कि हम 10 मिनट या 15 मिनट का सेल्फ मेडिटेशन की साइलेंट मेडिटेशन करें या योग निंद्रा करें। जितनी हमारी अवेयरनेस हम बॉडी माइंड और उसके अलाइनमेंट के साथ कनेक्ट होंगे, तो धीरे धीरे हमारी सभी स्त्रियों वुमन की क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होगी। तो वो चीजें हमें हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ के सारे एक्सपेक्ट, फिजिकल मेंटल इमोशनल और स्पिरिचुअल लेवल को वो एनहांस करेगी। थैंक यू सो मच जिल। आई एम श्योर ये सारी वुमेन्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, क्योंकि ये सारे स्टेज हर एक वुमन की लाइफ में आते हैं। जब से उनका इमोशंस वगैरह स्टार्ट होता है, जब से उनका मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है, तब से लेके मेनोपॉज तक, अलग अलग फेज में जो भी लाइफ में आता है, उन सभी के लिए योग कैसे हेल्प कर सकता है और क्या क्या हम कर सकते हैं, उन सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। नाउ अब मैं हमारे ट्रेजरर, इंडियन योग एसोसिएशन के ट्रेजरर विक्रम जी को इनवाइट करना चाहूंगी। वेलकम विक्रम जी। नमस्कार, नमो नारायण। विक्रम जी, हम लोग आपके साथ बात करेंगे इस बार का जो इंटरनेशनल योगा डे है, उसका जो थीम है वन अर्थ वन हेल्थ, उसके ऊपर। सो वन अर्थ वन हेल्थ के दृष्टिकोण से योग का पर्यावरण के साथ, एटमॉस्फेयर के साथ क्या रिलेशन है, क्या संबंध है? बहुत सरस, बहुत सुंदर ये प्रश्न है। ये जो प्रश्न जो है, अपने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने आज की अपने मन की बात में 30 मार्च को 2025 को एक सुझाव रखा, और ये सुझाव वहाँ ठहराव फाइनल हुआ। तो उसके मुताबिक उन्होंने ये वन अर्थ एक धरती और एक स्वास्थ्य, उसके ऊपर एक अपने ये योगा 11th इंटरनेशनल योगा डे का एक उन्होंने ये फाइनल प्रस्ताव कर दिया। ये प्रस्ताव जो है वन अर्थ एक धरती और एक स्वास्थ्य, ये अपने मानव शरीर के साथ, पशुओं के साथ, प्राणियों के साथ और पर्यावरण के साथ पूरा मिला हुआ है। हम लोगों को ये पर्यावरण, मनुष्य और पशुओं को एक इकट्ठा फिर से करने की एक उन्होंने एक साजिश की, और हम एक दूसरे को कैसे मदद कर सके, प्राणी को मदद कर सके, पर्यावरण के साथ कैसे रह सके, ये सब एक इकट्ठा करने का प्रयत्न किया मोदी साहब ने। तो ये एक अच्छा सुझाव है। जैसे कि अपने वैश्विक कुछ आती है, जैसे कोरोना आया, उसमें कुछ सबका स्वास्थ्य बिगड़ गया, पशुओं भी सब आराम से बैठ गए, नदी पानी पे सब भी वैसे रह गया। तो वो सबको एक बार इकट्ठा करके फिर से अपने अपने योग के लिए
और उनको एक दूसरे की मदद के लिए जो इकट्ठा किया, ये उसका एक मेन रीजन था। जी मैम। आपको हिनल अनम्यूट करना पड़ेगा। हिनल। जा। सॉरी, सॉरी। सो अब आप मुझे ये बताइए विक्रम जी कि ऐसा कौन सा ध्यान है, ऐसा कौन सा योग है जो करने से हम धरती माता के साथ और भी कनेक्टेड हो सके, अर्थ के साथ कनेक्टेड रह सके, क्योंकि मैंने ऐसा सुना है कि अर्थ के साथ कनेक्शन के बहुत ज्यादा बेनिफिट्स होते हैं। રાઈટ। યોગનું નામ જ છે જોડવું, યુઝ। તમે સારી રીતે તમે જોડાઓ અને તમે એકબીજા સાથે જોડાઓ તો એ જોડવાનું જ મહત્વ છે। સપોઝ તમારે યોગ સાથે જોડવું છે તો ધ્યાનમાં તમે તો યોગ યમના 8 નિયમો છે, યમ, નિયમ, આસન, પ્રાણાયામ, પ્રત્યાહાર, ધારણા અને ધ્યાન અને સમાધિ। સમાધિ તો લાસ્ટ આવે છે, પણ ધ્યાન સૌથી સારામાં સારી વસ્તુ ધ્યાન છે। ધ્યાન તમે ક્યારે કરી શકશો? તમારું મન શાંત હશે। આગળના નિયમો જે તમે યમ, નિયમ, આસન, પ્રાણાયામ તમે કરશો તો ધ્યાન તમારું ઓટોમેટિક લાગશે। તે સિવાય તમારું ધ્યાન લાગવાનું નથી। તમે પહેલા યમ કરવા પડે, નિયમ પાડવા પડે, પછી થોડા પ્રાણાયામ કરવા પડે અને એ પ્રમાણે કરતા કરતા તમે ધ્યાન સુધી પહોંચી શકો છો। સપોઝ તમારે કોઈ પ્રાણાયામ કરવા હોય, તમે ઓમકાર છે, ભ્રમરી છે, કપાલભાતિ પ્રાણાયામ છે, એ બધા તમે પ્રાણાયામ તમે કરશો તો ધીમે ધીમે તમારું મન તમારું સ્ટેબલ થશે અને તમારું શાંત થશે। મન શાંત થશે તો તમને બધા વિચારો પણ તમારા શાંત થશે। વિચારોમાં તમે આધ્યાત્મિકમાં આવશે, પશુ પ્રત્યે તમને બધી સારી તમને એ પેદા થશે અને તમે તમારા પર્યાવરણ સાથે તમે એટેચ થઈ શકશો। આ બધું કરતા ધીમે ધીમે તમે ધ્યાન પર જઈ શકશો। ધ્યાન એવી વસ્તુ છે કોઈના કરાવવાથી થતું નથી। આપણું મન શાંત રાખો, શાંતિથી તમે બેસો, મનમાં જે વિચારો આવે એ વિચારોને આવવા દો, ધીમે ધીમે મનના વિચારો બંધ થશે। જેમ કે આપણે એક બાલ્ટીમાં બાથરૂમમાં બેસીએ નવા માટે તો બાલ્ટી ભરીએ, આપણે ઉપરથી ચકલી ચાલુ કરશું, બાલ્ટીમાં સપોઝ ખરાબ પાણી હશે તો પાણી તમારા અંદર બાલ્ટી ચકલી ચાલુ કરે પાણી રહેશે, ધીમે ધીમે બાલ્ટીમાંથી પાણી બધું ખરાબ પાણી વહેતું નહીં, ખાલી ચોખ્ખું પાણી રહેશે। એ જ પ્રમાણે મનની અંદર જયારે તમે કોઈ વિચારમાં બેસી જશો તો તમને મનમાં વિચારો બધા આવશે, પણ ધીમે 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 તમારા વિચારો બધા બંધ થઈ તમારું મન એકદમ સ્ટેબલ થઈ જશે। એટલા માટે તમારે ધ્યાન કરવું ખાસ જરૂરી છે। બીજું, આસન અને પ્રાણાયામમાં સૂર્ય નમસ્કાર, તમે સૂર્ય નમસ્કાર તમે જો કરો તો તમે ધરતી સાથે અને સૂર્ય સાથે, કારણ કે સૂર્ય શું છે, કેટલા વર્ષોથી અખંડ દરરોજ આપણી પૃથ્વીને એ આપણને ગરમી આપે છે, ઠંડી એ આપે છે। એ આપણને કોઈ પણ આપણે એને માંગતા પણ નથી, તો આપણે એને પાછું આપવા માટે પૃથ્વી ઉપરથી સૂર્ય નમસ્કાર જ્યારે આપણે કરીશું આપણે તો એની તમને બેનિફિટ ઘણો સરસ થશે પોતાની બોડીની અંદર। એ જ પ્રમાણે સૂર્ય નમસ્કાર ધીમે ધીમે ચાલુ કરો તો ઓટોમેટિક બધા થઈ જશે। અને આ સૂર્ય નમસ્કાર, યોગ, આસનો અને પ્રાણાયામ આટલું તમે જો કરતા રહેશો તમે પૃથ્વી સાથે અને પશુ પ્રાણીઓ સાથે તમે સંલગ્ન રહી શકશો, માનવ પ્રત્યે તમે શાંત રહી શકશો। थैंक यू। थैंक यू सो मच विक्रम जी, इट वाज अ वंडरफुल आंसर कि हम लोग अर्थ के साथ कनेक्टेड कैसे रह सकते हैं। मैंने ऐसा कहीं पढ़ा था और कहीं से किसी एक्सपर्ट के साथ से जाना भी था कि अगर हम अर्थ के साथ कनेक्टेड रहते हैं तो हमारे बॉडी में जो मिनरल्स की, कैल्शियम की जो डिफिशियंसी होती है वो भी धीरे धीरे कम होती जाती है, और उनके साथ कैसे जुड़ा जा सकता है उसके बारे में आपने बता के बहुत ही लोगों की मदद की है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। Now, I would like to invite our convener, account convener, Bhakti Shah. Welcome, Bhakti ji. नमस्ते। भक्ति जी, हम आपके साथ बात करेंगे अबाउट चिल्ड्रंस एंड पेरेंटिंग रिलेटेड टू द योग। सो बच्चों को योग की शुरुआत कब से करानी चाहिए? आजकल पेरेंट्स बहुत मोटिवेट होते हैं कि बच्चों को योग कराए ताकि उनका मन शांत रहे, तो किस एज से ये हम स्टार्ट कर सकते हैं और कैसे करनी चाहिए? Hello, everybody. Wishing you all not only a one yoga day, but the entire life filled with yoga. So this is a beautiful question for me. बच्चों का योग, तो बच्चों का योग तो मैं बोलूंगी तो वो जन्म के साथ ही योग करते हैं। जैसे ही उनका जन्म होता है और एक सांस भरते हैं, रोना शुरू कर देते हैं, तो सांस लेनी शुरू हो गई माने योग शुरू हो गया। और दैट बॉडी अंडरस्टैंड्स कि ओके मुझे पाचन की जरूरत है, तो वो हमेशा वो अपने पैर पेट की तरफ ले आता है, उल्टा हो जाता है, तो पेट में जो भी गैस्ट्रिक जो भी इश्यूज होते हैं वो अपने आप खुद रिजॉल्व करना शुरू कर देता है।
बट फिजिकली अगर बाहर से हम देखते हैं तो हम बच्चों को योग की शुरुआत 5 साल से करवा सकते हैं. यस. Inal, any other questions or should I Yes. talk on this topic? No. We have one more question. क्या कोई छोटी जैसी चीज योग अभ्यास माता पिता और बच्चों के आपसी जुड़ाव के मार्ग बढ़ाने में मदद कर सकती है? Of course. जो भी हम योग प्रैक्टिस बच्चों को सिखाते हैं तो दे स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग द वैल्यूज ऑफ देयर ओन सेल्फ. Connect yoga is to connect yourself, so they start connecting their self not with them, their body, but also the environment in what they are living. तो सबसे नजदीक का एनवायरनमेंट उनका पेरेंट्स का होता है, तो उनका रिलेशनशिप पेरेंट्स के साथ बॉन्डिंग अच्छा हो जाता है. उनका रिलेशनशिप उनके जो फ्रेंड्स होते हैं, स्कूल कलीग्स होते हैं, उनके साथ अच्छा हो जाता है. उनका रिलेशनशिप जो डेली प्रैक्टिस वो लोग करते हैं उसमें बहुत ही अच्छा हो जाता है. पढ़ाई है, रमत गमत है. एंड आई वुड इंसिस्ट कि हम देखते हैं बड़ी सिटी में, तो हम देखते हैं अहमदाबाद, बैंगलोर, दिल्ली, बॉम्बे, सभी जगह देखते हैं कि 6-7 साल का बच्चा हो जाता है तो पेरेंट्स कोई ना कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी में डाल देते हैं. हार्डली देयर आर सम पेरेंट्स हु पुट द किड्स इन योग एक्टिविटी, बट या द अवेयरनेस इज देयर. स्टार्ट हुआ है, काफी लोग डालते भी है. पर मेरा ये सजेशन रहेगा कि व्हाई डोंट वी ऐड योगा इन स्पोर्ट्स एक्टिविटी. सो क्या होगा कि कोई भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी में अगर 5-10 मिनट का योगा शुरू में डाल देते हैं तो जो स्पोर्ट्स एक्टिविटी वो बच्चा कर रहा है उसका परफॉर्मेंस काफी आगे और काफी अच्छा रहेगा. हम देखते हैं कि वी आर स्ट्रगलिंग इन ओलंपिक्स, इन ऑल द गेम्स व्हेन इट इज परफॉर्म्ड ऑन अ इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म. सो वो स्ट्रगलिंग कम होगा. देखिए, अगर मैं सिंपली बताऊं कि स्विमिंग में जाता है आपका चाइल्ड और स्विमिंग कोच अगर योग से थोड़ा परिचित है तो स्विमिंग करने से पहले अगर उनको प्राणायाम कराता है, डीप ब्रीदिंग कराता है, तो जो स्विमिंग का परफॉर्मेंस उसका होगा वो काफी अच्छा होगा. एंड आई कैन गारंटी ऑन दिस पार्ट. कोई भी स्पोर्ट्स लो, चेस ले लो तो उसमें ध्यान की आवश्यकता आती है. टेनिस ले लो तो फोकस की आवश्यकता आती, बॉडी मूवमेंट की आवश्यकता आती है. क्रिकेट ले लो तो हम देखते हैं, अभी आईपीएल देखते हैं तो कितना अच्छा बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए शरीर का. अगर वो बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए अगर क्रिकेट कोचिंग में शुरू में आप थोड़े आसन डाल दो जो पूरे बॉडी को फ्लेक्सिबल करते हैं, वो आसन अगर परफॉर्म करते हैं तो उनका परफॉर्मेंस अच्छा हो जाता है. सो एनी स्पोर्ट्स kids are going, the coaching industry should focus on yoga and then the coaching of particularly sports what they are learning. थैंक यू सो मच भक्ति जी. एक गुरुजी से मिली थी मैं, तो उनके साथ इसी बारे में कुछ बात हो रही थी, तो उन्होंने मुझे एक बहुत अच्छा सजेशन दिया था कि जब पेरेंट्स, जब मदर्स हमारी क्लास में आती है तब वो लोग बच्चों को कभी साथ में लेके नहीं आते. बच्चे ज्यादातर चीजें ऑब्जर्वेशन से सीखते हैं. जब हम बाहर खाना खाने जाते हैं रेस्टोरेंट्स में, तब हम लोग बच्चों को साथ लेकर जाते हैं. जब हम लोग मूवीज देखने जाते हैं, घूमने जाते हैं, कुछ भी करते हैं तो बच्चे हमारे साथ होते हैं. जब हम योगा क्लास में जाते हैं तो बच्चों को घर पे छोड़कर जाते हैं कि वो हमें डिस्टर्ब करेंगे. इसके अलावा अगर हम लोग उन्हें साथ में लेकर जाना स्टार्ट करें या उनके साथ घर पे अगर योग करना स्टार्ट करें तो वो ऑब्जर्वेशन से छोटी उम्र से ही योग करने के लिए बहुत ही ज्यादा मोटिवेट होंगे. सो आपने एक बहुत अच्छा सुझाव दिया कि हम लोग हर एक स्पोर्ट्स एक्टिविटी में ये ऐड कर सकते हैं. इसके साथ साथ बच्चों को ऑब्जर्वेशन से सीखने की आदत होती है, तो अगर हम करना शुरू करेंगे तो डेफिनेटली बच्चे भी करना शुरू वो करेंगे. तो है ही. तो ऐसा दिन भी होना चाहिए जैसे योगा डे है, उस तरह सब क्लास को ऐसा दिन रखना चाहिए कि ओके, ब्रिंग योर चिल्ड्रन फॉर योगा क्लास. यस, ऐसा डेफिनेटली. वीक रखना चाहिए, जैसे समर वेकेशन में ले लो या कोई महीने में एक बार, ब्रिंग अलोंग योर किड्स. तो इट इज गोइंग टू बी वेरी गुड बॉन्डिंग एज यू सेड, एंड अ फन एक्टिविटी के साथ वी कैन ऐड लिटिल लाइक लेट मी शेयर यू के हम लोगों ने बिंगो, योगा बिंगो किया था.
तो उसमें वो बिंगो में क्या किया हम लोगों ने, वी जस्ट प्लेड लाइक फॉर्म अ ग्रुप ऑफ 10, डू ताड़ासन। तो सब एक दूसरे को खींचते हैं और फिर ताड़ासन। तो बच्चों को ऐसे बिंगो, ऐसे स्पोर्ट्स के साथ साथ कनेक्ट, सॉरी, गेम्स के साथ कनेक्ट करके उनको भी आसन सिखा सकते हैं हम लोग। तो it Yes, is going to be very definitely. interesting for them, and then they will look forward for more in going into yoga culture. Yes, yes, definitely. Thank you so much, Bhakti जी। Namaste. अभी मैं हमारे सेक्रेटरी मिस्टर राजीव जी को इनवाइट करना चाहूंगी। नमस्ते राजीव जी। नमस्ते नमस्ते। राजीव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपसे हम डिस्कस करेंगे सीनियर सिटीजन्स के बारे में। आप एक बहुत ही अच्छे योगा के एक्सपर्ट हैं, आपका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। आप मुझे ये बताइए कि बुजुर्ग व्यक्तियों के लिए, जो सीनियर सिटीजन्स होते हैं, उनके लिए योग कैसे मन और शरीर को संतुलित करता है, कैसे बैलेंस करता है? बहुत ही सुंदर सवाल आपने पूछा। मुझे लगता है जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है तो शरीर के काम करने की जो क्षमता होती है धीरे धीरे कमजोर होने लगती है, कम होने लगती है। तो जैसे जैसे उम्र बढ़ी, अगर साथ में योग करें तो उससे आपका पूरा शारीरिक जो है स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा, मानसिक स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा। बढ़ती उम्र के साथ देखें, सबसे पहले तो उनके जो जोड़ों में तकलीफ हो जाती है, फिर उनके फेफड़े हैं जो सांस लेने में उनको तकलीफ होती है, तो बहुत सारे उनके कॉम्प्लिकेशंस एजिंग की वजह से बने रहते हैं। योग उनको शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से जो स्वस्थ रखने में बहुत हेल्पफुल हो सकता है। फिर जैसे कि उनकी उम्र के हिसाब से उनको कुछ सिलेक्टेड प्रैक्टिस करनी चाहिए, जैसे जॉइंट्स मूवमेंट हुए, सिलेक्टेड आसन हुए। फिर ये अगर वो आसन नहीं कर सके तो मुझे लगता है कि उस उम्र में, बढ़ती हुई उम्र में, प्राणायाम है वो बहुत अच्छी भूमिका निभा सकता है। फिर जो टेंशन है, स्ट्रेस है, इंसोम्निया है, इन सब चीजों के लिए अगर उस बढ़ती हुई उम्र में ध्यान का अभ्यास करें तो मुझे लगता है कि उनके मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी ये बहुत अच्छा रहेगा। तो जेनेटिक जो एज होती है, उस उम्र में, बढ़ती हुई उम्र में योग एक बहुत ही श्रेष्ठ विकल्प है। यदि नियमितता के साथ कंटिन्यूस इसका अभ्यास सिखाया जाए, उनको कराया जाए, तो मेरा अनुभव ऐसा है कि इसका बहुत ही सकारात्मक प्रभाव जो देखने को मिला है। हमारे यहाँ सीनियर सिटीजन के बहुत सारे बैचेस चलते हैं, उसमें कई लोग ऐसे होते हैं जो 60 साल से ऊपर के होते हैं, 70 ईयर्स, 75 ईयर्स, 80 ईयर्स, और वो लोग योग को इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि योग करने से जो है उनकी तंदुरुस्ती पहले से काफी बेहतर है। और जो दवाओं, जो कई लोग दवा लेते रहते हैं, तो ऐसे में जो उनका दवाओं का जो असर है, साइड इफेक्ट है, वो उनके शरीर पर उसका दुष्प्रभाव जो है कम होता है। तो मैं कहना चाहूंगा इस विशेष अवसर पर, जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनके लिए योग एक वरदान स्वरूप है। आप अपने लिए, क्योंकि उनके पास वक्त की कमी नहीं है, वो जितना चाहे वो वक्त दे सकते हैं, तो आप अपने जो नजदीक के जो भी योग के सेंटर्स हैं वहां जाए, योग गुरु के मार्गदर्शन में योग सीखें और बाकी सारी जिंदगी जो है वो स्वस्थता के साथ जीवन यापन करें। थैंक यू सो मच राजीव जी। क्या जिन लोगों को चलने की प्रॉब्लम है या जो लोग नीचे नहीं बैठ सकते, क्या वो लोग भी योग कर सकते हैं? सीनियर सिटीजन्स का हमेशा ये क्वेश्चन रहता है कि हम लोग चल नहीं सकते, नीचे नहीं बैठ सकते, योग तो कैसे कर सकते हैं? तो क्या उनके लिए भी योग संभव है? बहुत अच्छा सवाल है ये। योग तो हर स्थिति में संभव है। अभी ये नीचे नहीं बैठ सकते हैं, वो उनके शारीरिक जो भी तकलीफें हैं उनकी वजह से नहीं बैठ सकते, कुर्सी पर बैठकर वो आराम से योग कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे जो क्रियाएं हैं जो वो कुर्सी पर घर पर बैठे कर सकते हैं, सोफा पर कर सकते हैं। जब उसके बाद मान लो कि वो आसन थोड़ा करते नहीं, कुर्सी पर करें, ज्यादा से ज्यादा वो बैठकर प्राणायाम कुर्सी पर कर सकते हैं, ध्यान का अभ्यास कुर्सी पर कर सकते हैं। तो ऐसी कोई चीज नहीं है जो वो नहीं कर सकते। देखो, नहीं नीचे बैठ पाने की वजह है उनके घुटनों में दर्द का होना, या किसी डॉक्टर्स ने कहा हो कि आपको नीचे बैठना रिस्ट्रिक्टेड है। लेकिन ऐसा नहीं है कि एक बार डॉक्टर ने कह दिया कि आप नीचे मत बैठो तो आप योग नहीं कर सकते। आप ज्यादा बेहतर योग कर सकते हो। आप जो है लेट कर, जैसे कि आपके बेड पर कर सकते हो। हमारे यहाँ हेल्दी लाइफ क्लब चलाते हैं, तो उसमें कई सारे लोग आते हैं जिनको डॉक्टर्स ऑलरेडी उनको कहा होता है कि आपको नीचे नहीं बैठना।
तो हम उनके लिए जो है पूरा बेड है जो हम प्रोवाइड करते हैं, उनके साथ एक चेयर प्रोवाइड करते हैं, और दे आर डूइंग फैंटास्टिकली, बहुत ही बेहतरीन तरीके से वो लोग प्रैक्टिस करते हैं। इसीलिए अगर इन्हीं को ऐसा लगता हो कि भाई हम नीचे नहीं बैठ सकते तो मैं योग कैसे करूंगा, चल नहीं सकता, घुटनों में दर्द है, कोई दूसरे जॉइंट्स पेन है, हमसे नहीं होगा, तो मन से ये बातों को निकालें। और सूक्ष्म क्रियाएं जो है गर्दन से लेकर पैर के अंगूठे तक आप आराम से कुर्सी पर बैठ के कर सकते हैं। शरीर के हर एक अंगों को स्वस्थ रखने के लिए बहुत सारी विधियां हैं जो आप कुर्सी पर, बेड पर आराम से कर सकते हैं। अगर आपको नीचे नहीं बैठना हो, जो भी विकल्प खुले हैं, तो मैं सबसे यही कहूंगा कि आप सभी जितना भी जो भी साधन आपके घर में हो, जहां भी आप कर सकते हो, ठीक है, आप नीचे मत बैठे, लेकिन बाकी जगहों पर आप आराम से योग करें। और सबसे बड़ी बात है कि जो बढ़ती उम्र में आप प्राणायाम को बहुत अच्छी तरह सीख रहे हैं, प्राणायाम का अभ्यास करें, इससे आपकी आपकी स्वास्थ्य भी अच्छी रहेगी, आपका मानसिक स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। ध्यान का अभ्यास करें जिससे कि आपका आध्यात्मिक स्वास्थ्य भी, आध्यात्मिक लाभ भी मिलेगा, और मेंटली आपको जो है एक आनंद की अनुभूति होगी। थैंक यू सो मच राजीव जी। मतलब अब सीनियर सिटीजन्स के लिए कोई एक्सक्यूजेस नहीं चलेगा। आप नीचे बैठ सकते हो, नहीं बैठ सकते हो, चल सकते नहीं चल सकते, आप योग जरूर कर सकते हो। नहीं करना वो तो एक मन का विषय होता है, वो मन से सोच लेते हैं कि मुझे नहीं करना है, मुझसे नहीं होगा, लेकिन मैं मानता हूँ कि वो ज्यादा बेहतर कर सकते हैं क्योंकि उनके पास पूरा वक्त होता है। और फिर से बोलता हूँ कि योग है वो अभ्यास की चीज है। और यहाँ एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि योग जो है उसके लिए कोई उम्र की सीमा नहीं है। जिम जाने की एक उम्र की सीमा है। आपने देखा नहीं होगा 80 साल का कोई व्यक्ति जिम में जाकर शरीर नहीं बनाएगा, लेकिन 80 साल के बुजुर्ग को आपने योग सेंटर्स में देखा होगा कि वो योग करते हुए मिलेंगे। इसीलिए आप ये मन से निकाल दीजिए कि आपकी उम्र कितनी भी, बस ये है कि आपको नियमितता के साथ आपको अपने शरीर, मानसिक स्वास्थ्य के लिए, आपको शारीरिक स्वास्थ्य के लिए, आपको भावनात्मक स्वास्थ्य के लिए और आध्यात्मिक विकास के लिए समय निकालना है। और थोड़ा नियमित रूप से समय निकालेंगे तो उसका अचूक और अलौकिक उसके फायदे आपको होंगे जो आप अनुभव कर यस, सकते हैं। थैंक यू सो मच राजीव जी। बिल्कुल सही कहा आपने। अगर अंदर से चाह है तो हम योग जरूर कर सकते हैं। बहुत सारे लोग बहुत कम समय के लिए योग करते हैं और फिर उन्हें लगता है कि नहीं, उसका कोई फायदा नहीं है, या इतना करने से क्या ही हो जाएगा। बट हमें ये सोचना चाहिए कि जब नरेंद्र मोदी जी जैसे बड़े बड़े लोग, एलन मस्क जैसे बहुत बड़े बिजनेसमैन इतने बिजी स्केड्यूल में से भी अपनी 30 मिनट्स कम से कम निकाल के एवरी डे ब्रीदिंग एक्सरसाइज एंड मेडिटेशन करते हैं, तो योग का उनके जीवन में कितना अच्छा प्रभाव पड़ता होगा, कितना अच्छा हेल्पफुल होगा, तभी वो लोग अपना टाइम निकाल के योग में इन्वेस्ट करते हैं। अभी हम लोग इसी के बारे में थोड़ा और आगे डिस्कस करेंगे मौली जी के साथ। मौली बाविस्कर, अवर वाइस चेयरमैन। आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस मौली जी। नमस्ते मौली जी। नमस्ते, नमस्ते हिना। मौली जी, हम आपसे बात करेंगे हेल्थ केयर वर्कर्स और केयर गिवर्स के बारे में। जो लोग दूसरों की चिकित्सा करते हैं, जैसे चिकित्सक है, केयर गिवर्स है आदि, उन लोगों की योग के साथ क्या भूमिका की जा सकती है? ये तो आपने एकदम पर्सनली सवाल कर दिया, हमारे ही बारे में पूछ लिया। तो बढ़िया सवाल है। चिकित्सक की बात हम जब करते हैं, चाहे वो एलोपैथी के है या होम्योपैथी, आयुर्वेदा, नेचुरोपैथी, या हमारे जैसे योग चिकित्सक हो, आ, हर एक चिकित्सा का प्रैक्टिस जो भी किसी भी फॉर्म में करते हैं, तो उनको हमेशा रिसीविंग एंड पे प्रॉब्लम्स ही आते हैं। लोग ऐसे ही अप्रोच करते हैं कि उनको कोई प्रॉब्लम है और उसका सोल्यूशन चाहिए। बहुत सारा नेगेटिविटी आते रहता है। सो एक चिकित्सक के लिए एनर्जी शील्डिंग करना बहुत इम्पोर्टेंट है। और सबसे पहले तो मैं यही बताऊंगी कि योग, अष्टांग योग में जो यमा और नियमा है, ये दो पहलुओं को अगर हम समझ ले तो एक चिकित्सक को ये बहुत बड़ा इंटरनल स्ट्रेंथ देता है। और दूसरा, डिटैचमेंट। इफ यू कैन डिटैच फ्रॉम व्हाट इज हैपनिंग, आप उसको बहुत ज्यादा इन डेप्थ हेल्प कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं, ना कि आप भी भावनात्मक उसमें बह जाए उसके साथ। तो चिकित्सक से योग एज अ आसना फ्रॉम सबको इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हेल्दी रहना है, फिट रहना है। बट अपना मनोबल और मनस्थिति और एक वैराग्य का भाव अगर ये आ जाए तो आप और भी अच्छे चिकित्सक बन सकते हैं। बट चिकित्सक के साथ साथ आपने केयर गिवर्स का भी पूछा।
कि जो लोग क्रॉनिक एलिमेंट्स में है, उनके जो केयर गिवर्स है, और मोटा मोटा हम उन पे ध्यान नहीं देते क्योंकि फोकस जो मेन पेशेंट है उसके ऊपर है, बट ये जो 24 घंटे उनके पीछे है, वो केयर गिवर्स का हेल्थ कभी कभी हम नजरअंदाज कर देते हैं। सो वाइल यस दे आर हेल्पिंग, तो उनको फिर से एक बार फिजिकली फिट होना बहुत इंपॉर्टेंट है, बट उनका मनोबल हाई रखना, एक स्ट्रेंथ देना, ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और उनको समझते नहीं है लोग, ज्यादातर उनको अनदेखा कर देते हैं एज इफ दे डोंट एग्जिस्ट। तो ये सब छोटी छोटी चीजें हैं जो योग अभ्यास से वो लोग खुद के लिए एक ऐसा रूटीन बनाए जहां वो ज्यादातर अपने मनोमय कोश पे ध्यान करने से या प्राणायाम करने से दे आर ऑल्सो क्रिएटिंग एन एनर्जी शील्ड अराउंड देमसेल्व्स, कि ठीक है, वहां से बाहर से सपोर्ट मिला नहीं मिला, खुद को इतना रोबस्ट बनाना है कि आप एक केयर गिवर का रोल प्ले कर रहे हैं, जो ऑलरेडी एक बहुत पुण्य का काम है, बट आपका खुद भी ध्यान रख रहे हैं। एंड यू हैव टू कीप योर सेल्फ एज अ प्रायोरिटी। कभी कभी इमोशंस में हम अपने को सेकंड रख लेते हैं, बट इवेंचुअली वो एक लॉस का ट्रांजैक्शन है। वी नीड टू टेक केयर ऑफ आवर सेल्स फर्स्ट एज केयर गिवर्स, एंड देन डू वट एवर बेस्ट वी कैन ऑफर। दैट मेक्स सेंस? थैंक यू सो मच मौली जी। क्या आप ऐसी कुछ सेल्फ केयर टेक्निक या योगा की कुछ ऐसी चीजें बता सकते हैं जो हम सेल्फ केयर के लिए यूज कर सकते हैं? ओके, मैंने सेल्फ केयर बोल दिया, तो अभी कैसे करने हैं वो भी बताते हैं। सी सेल्फ केयर के लिए, एंड स्पेशली दोज हु आर, अगर चिकित्सक भी है तो वो भी बहुत उसके रूटीन्स बिजी है। हमने देखा है कि 18-18 घंटे हम वर्कशॉप्स है, ट्रैवल है, काम है, वो सब चलता है। या फिर जो केयर गिवर है वो भी 24 घंटे पेशेंट के साथ है। तो सेल्फ केयर के लिए बहुत बार ऐसा हो जाता है कि खुद का टाइम निकाल पाना बहुत मुश्किल है। तो मैं, क्योंकि नाद योग की उपासक हूँ, मैंने ये देखा है कि जपा का प्रैक्टिस, जप साधना, ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग एंकरिंग टूल बन के हेल्प करता है। और ऐसे मेडिटेशंस बताए हैं, आजपा जपा। तो एक जो मेरा एंकरिंग साउंड है, अगर वो गुरु मंत्र है या आपका जो भी मंत्र है, या फिर अगर कोई एफर्मेशन है या समथिंग, जो इतना कॉन्स्टेंटली रेपिटेटिवली उसका जपा हो रहा है कि वो ऑटोमेटिकली, आप कॉन्शियसली जपा नहीं कर रहे तब भी एक बैकग्राउंड में हो रहा है, आ जपा जपा हो रहा है। तो वेन एवर यू आर ड्रॉपिंग डाउन, ये आपका एंकर पॉइंट बन जाएगा और ये आपको कभी गिरने नहीं देगा, और मंत्र आपको कभी नहीं गिरने देगा। सो मुझे पर्सनली लगता है कि एक बहुत लंबा और बड़ा प्रैक्टिस ना करके, बट एक कंसिस्टेंट और कॉन्शियस जप साधना करने से दिस बिकम्स अ वेरी वेरी रोबस्ट सपोर्ट एंड स्कैफोल्डिंग टू हेल्प, whether it is a caregiver or a therapist or a healthcare practitioner. थैंक यू सो मच मौली जी। इट इज रियली हेल्पफुल टू एवरीवन। खुद की देखभाल करना सबसे ज्यादा जरूरी है। कहते हैं ना कि अगर हम खुद खुश होंगे तो दूसरों को खुश कर पाएंगे, वैसे ही अगर हम खुद हेल्दी होंगे तो दूसरों की हम हेल्थ केयर कर पाएंगे। थैंक यू सो मच। नाउ आई वुड लाइक टू इनवाइट अवर चेयरमैन ऑफ इंडियन योग IYA Gujarat chapter, Shailesh ji, Mr. Shailesh ji Rathod. He is a really good yoga expert from Art of Living. Welcome, Shailesh ji. जय गुरुदेव, थैंक यू। शैलेश जी, हम आपके साथ बात करेंगे बच्चों के बारे में, युवा वर्ग के बारे में। युवा वर्ग जो है, जो आज का यूथ है, जो इंडिया का फ्यूचर है या वर्ल्ड का फ्यूचर है, युवा वर्ग के लिए योग कितना जरूरी है, खास करके आज की जो स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल है, स्क्रीन टाइमिंग्स है, उन सभी के लिए? जब आप यूथ की बात करते हैं हिनल, तो अ, अ, आजकल आप देखेंगे यूथ के बारे में, तो एक तरफ यूथ बहुत ही महत्वाकांक्षी है, उनको बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ सीखना चाहते हैं वो लोग। एक तरफ वो बहुत ऊंचाई पे बढ़ना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, कैरियर बनाना चाहते हैं, अपने गोल को सेट करके रखा है छोटी सी उम्र से। आज से 40 साल पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। उस समय
यूथ को इतना जानकारी नहीं था, एक्सपोजर नहीं था, रादर देन इतना, है ना, समझते नहीं थे। आजकल के जो युवा है ना, वो बहुत कुछ समझते हैं, समझ शक्ति बहुत ज्यादा है, बहुत कुछ करना चाहते हैं, दौड़ना चाहते हैं, बहुत कुछ हासिल करना चाहते हैं, अपने अपनी इच्छाओं को पूर्ति करना चाहते हैं। लेकिन यही जो युवा है, हमारा युवा धन है, उनका अगर एक और पहलू में बोलूं या समझाऊं या आज के श्रोताओं को समझाऊं, तो आजकल ये यूथ जो बहुत महत्वाकांक्षी है, दौड़ रहा है, भाग रहा है अचीव करने के लिए, अगर ध्यान से देखा जाए तो ये यूथ नकारात्मकताओं में फंसा हुआ है। इन टर्म्स ऑफ ऑल एस्पेक्ट मुझे बताने का जरूरत नहीं है नकारात्मकता कौन से। जैसे खाना आज देखोगे तो आप खाने की शुद्धता के बारे में बात ही नहीं कर सकते। आप अगर उनके सोने के समय के लिए कुछ डिस्कशंस करो तो उनके लिए रात में वो कुछ एक्टिविटी करने का एक एक और पहलू है। तो कहीं ना कहीं सोना ठीक नहीं है, कहीं ना कहीं खाना ठीक नहीं है, कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा सीमाओं से ज्यादा आगे दौड़ना चाहते हैं। सो एक पहलू है जहाँ ये लोग बहुत टेक्निकली साउंड है, बहुत कुछ कर सकते हैं या करने की क्षमता रखते हैं। एट द सेम टाइम बहुत ज्यादा कंपटीशन, बहुत ज्यादा नकारात्मकताओं में आजकल का युवा फंसा हुआ है। और कहीं ना कहीं अगर ये दोनों पहलू सिक्कों के मैं देखूं, तो मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि बहुत छोटी सी उम्र से मैं भी योग के साथ जुड़ा, गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी के साथ जुड़ा, तो मेरे जीवन के खुद के अनुभव के ऊपर से कि ये नकारात्मकताओं से अगर मुक्ति हम चाहते हैं ना, तो डेफिनेटली योग बहुत हद तक कर सकता है। एट द सेम टाइम ये जो महत्वाकांक्षा है, गोल सेट किए हुए हैं, उसके लिए जो दौड़ना है ना, उसकी जो ऊर्जा है ना, ये भी योग ही दे सकता है। मैं कई बार मेरे व्याख्यान में एक बात कहता हूं कि अगर लंबा दौड़ना चाहते हो किसी भी गाड़ी को, अगर मुझे बहुत लंबा चलाना है तो वी नीड फ्यूल। ऐसे ही एक यूथ को अगर बहुत ऊंचाई पे बहुत आगे बढ़ना है ना, तो मुझे ऐसा लगता है दे नीड फ्यूल। फ्यूल माने प्राणा। एज ए योगा एक्सपर्ट मुझे पता है आप भी समझ रहे हो, लेकिन श्रोता भी समझे। प्राण माने हमारे भीतर की वो शक्ति जो आपको लंबा चलाएगी, बहुत ज्यादा दौड़ाएगी, और आपको जो हासिल करना है डेफिनेटली आप हासिल कर सकते हैं। इवन एक और उदाहरण से भी मैं समझा सकता हूँ। जैसे कोई आप गाड़ी चला रहे हैं, तो आज देखना जो हमारी उम्र के जो पुराने लोग हैं ना, वो धीरे चलाएंगे, यूथ बोलेगा बहुत स्पीड चाहिए। तो अगर आप गाड़ी में स्पीड चाहते हो, जीवन में स्पीड चाहते हो, तो गाड़ी अच्छा क्वालिटी का चाहिए, इंजन बड़ा चाहिए, अच्छा चाहिए, नया चाहिए। सो सेम वे अगर गाड़ी स्पीड चलाने के लिए इंजन या गाड़ी अच्छा मॉडल का चाहिए ना, आप ये क्यों समझने के लिए तैयार नहीं है कि मुझे भी अगर स्पीड में चाहिए तो ये मॉडल को भी मुझे नया करना पड़ेगा, इसे भी मुझे सशक्त करना पड़ेगा, इसे भी मुझे बहुत ज्यादा बैलेंस। अगर टू व्हीलर आप चलाते हो 120 140, हाँ, तो बैलेंसिंग इज द मेन पार्ट। तो ऐसे ही अगर आप बहुत ज्यादा आगे बढ़ना चाहते हो, तो मेंटल बैलेंसिंग इज द मेन पार्ट। सो कहीं ना कहीं मैं युवाओं से अनुरोध करूंगा कि नकारात्मकताओं से मुक्ति और शक्ति की प्राप्ति के लिए आपके पास एक टूल है। जैसे आजकल के बच्चे, युवा लोग, है ना, अपने साथ सब कुछ, हाँ, एक हेडफोन, मैं अभी भक्ति जी से देख रहा था, तो भक्त हेडफोन भी साथ में उनको चलता है, उनका आईपैड भी साथ में चलता है, उनके टूल्स सारे साथ में चलते हैं। तो अगर आप बाहरी टूल्स को अगर साथ में लेके चलने वाले योद्धा हो अगर आप, तो भीतरी टूल जिसे योग नाम है, मेरे हिसाब से अगर ये टूल आपने अपना लिया ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा भारत देश के युवा लोग प्रगति कर सकते हैं, कर रहे हैं, और ज्यादा कर सकते हैं। दिस इज माय ओपिनियन। थैंक यू सो मच शैलेश जी, बहुत बहुत ही अच्छा आपने सुझाव दिया है। ये यूथ के लिए समझने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है। क्या आप कोई ऐसी सरल योग टेक्निक बता सकते हैं जो यूथ स्टूडेंट्स कर सकते हैं? देखिए, ये क्वेश्चन मैं सुन रहा था आपको, ये क्वेश्चन आपने भक्ति जी से भी पूछा, मौली जी से भी पूछा, इवन विक्रम जी से भी पूछा, राजीव जी से पूछा। बीइंग a member of Gujarat Indian Yoga Association chapter, this is a very good question.
कि जिसके माध्यम से आप सभी समाज के जो स्तर हैं उनको एक छोटे से प्रश्न या किसी योगा एक्सपर्ट से एक छोटी की सलाह के माध्यम से उनको कुछ सिखाना चाहते हैं। बट मैं यहाँ अनुरोध करूंगा आपसे भी और सभी से भी जो सुन रहे हैं कि कोई सरल उपाय की जगह एक पूर्ण योग की ओर आगे बढ़े। विक्रम जी ने नाम दिया, झील जी ने भी बोला अष्टांग योग, यम भी होना चाहिए। वन मौली जी ऑल्सो सेड यम एंड नियम, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। अगर संपूर्ण योग की ओर आगे बढ़े, जैसे मैंने बताया यूथ को बहुत लंबा चलना है, कॉम्पिटिशन बहुत टफ है ना, उन्हें अपने आप को साबित करना ही पड़ेगा, उनको अपनी शक्तियों को खोलना ही पड़ेगा। तो दिस इज अ जेन्युइन रिक्वेस्ट फ्रॉम माय साइड, डोंट गो फॉर दिस इजी वे, शॉर्ट वे। गो, आप अपने आसपास में किसी बहुत अच्छे से योगाचार्य से मिले। जैसे इंडियन योग एसोसिएशन के लिए आ, आप जानते हैं कि भाई सभी योगा की जो परंपरा है ना वो एकत्रित हुई है एक लाइन में, जैसे सभी नदियों का पानी एकत्रित होता है, और ऐसे ही सभी योग गुरु योग परंपराएं एकत्रित होकर योग इंडियन योग एसोसिएशन बना, और वहां से जन्म हुआ इंडियन योग एसोसिएशन गुजरात चैप्टर का। तो यहाँ पे भी आप देखेंगे कि है ना, भक्ति योगा से भक्ति जी हैं, डमरू से मौली जी हैं, हिनल जी हैं, विक्रम जी हैं, अध्यात्मानंद जी आश्रम से, प्रोजेक्ट लाइफ से हमारे मित्तल जी हैं, राजीव जी हैं, झील जी हैं। तो अलग अलग एक्सपर्ट्स हैं। मैं ऐसा समझता हूँ आपके आसपास में डेफिनेटली कोई बहुत अच्छी संस्था से योगा एक्सपर्ट है, आप उनके पास जाइए। इवन कई सारे डिस्कशंस में आपने सुना आसन कीजिए, जैसे झील जी ने बताया, इवन भक्ति जी ने भी बताया, वहीं मौली जी ने बताया कि जपा आप कीजिए, वहीं पे सूर्य नमस्कार के बारे में विक्रम जी ने बताया। तो मुझे ऐसा लगता है कि सभी स्पीकर्स ने कुछ ना कुछ टिप्स डेफिनेटली दिए हैं, बट यूथ के लिए मुझे ऐसा लगता है एक टिप नहीं, एक सिस्टम हो। और सिस्टम का मतलब है आप किसी अच्छी संस्था में योगाचार्य से मिले, अपने जो भी थोड़े से कुछ आगे पीछे के पॉइंट है उनके साथ डिस्कस करें। जैसे देखें, आप बीमार होते तो क्या करते हो, आप जाते हो डॉक्टर के पास, उसको बताते हो कि मुझे ये प्रॉब्लम्स है, फिर डॉक्टर से कुछ पूछते हैं। ऐसे एक योगाचार्य के साथ अगर जुड़ाव किया जाए, किसी यौगिक इंस्टीट्यूट के साथ जुड़ाव किया जाए और सर्वांगी योग की ओर आगे बढ़ा जाए, तो मुझे ऐसा लगता है डेफिनेटली यूथ के लिए सर्वांगी योग जरूरी है। डेफिनेटली आप पूरे सेशन में सुनना होगा योग निद्रा, अगर फिजिकल फिटनेस चाहिए तो सूर्य नमस्कार करें, डेफिनेटली आपके लिए बहुत अच्छा है। योग निद्रा करेंगे तो आपका मन बहुत शांत रहेगा, ध्यान करेंगे तो डेफिनेटली आप अपने गोल्स के प्रति बैलेंस्ड वे में आगे बढ़ सकते हैं। इवन देर आर सो मेनी आसनास दैट यू कैन डू, बट सर्वांगी योग माने आपका जीवन को जो जरूरी है उन सभी बातों को एकत्रित करके। जैसे बेसिकली आई एम फ्रॉम गुजरात, तो गुजरात में हम थाली में जब खाना खाते हैं तो रोटी चाहिए, सब्जी चाहिए, दाल चाहिए, चावल चाहिए, अचार बिना गुजराती खाना नहीं खाते, पापड़ चाहिए, छाछ चाहिए, मट्ठा, और स्वीट नहीं हुआ तो फिर वो गुजराती कहाँ से हुआ। तो ऐसे ही युवाओं के लिए एक सरल की जगह थोड़ा सा उन्हें तकलीफ, थोड़ा सा वो हो सकता है, बट मैं ऐसा मानता हूं कि एक सर्वांगी योग की ओर आगे बढ़ा जाए तो युवाओं के लिए आने वाला समय बहुत सरल हो जाएगा और वो डेफिनेटली रॉक कर सकते हैं अपने जीवन को। जी थैंक यू सो मच शैलेश जी, बिल्कुल सही कहा आपने। जनरली हम योगा एक्सपर्ट्स को, जो आसपास के लोग होते हैं, वो लोग पूछते रहते हैं कि मुझे ये प्रॉब्लम है तो इसके लिए कोई एक आसन बता दो, योग में क्या कर सकते हैं। बट बिल्कुल सही कहा आपने कि ऐसी कोई एक चीज या एक आसन या एक प्राणायाम करने से कुछ इतना मेजर बेनिफिट नहीं हो सकता है। जैसे कि खाने में खाली रोटी खाने से नहीं चलेगा, हमें रोटी भी चाहिए, सब्जी भी चाहिए, दाल भी चाहिए, पूरा न्यूट्रिशन चाहिए। उसी तरीके से योग में भी सर्वांगी योग अपनाना ही सबसे बेस्ट वे होता है। थैंक यू सो मच शैलेश जी। थैंक यू। आप मुझे कह रहे हैं, एक्चुअली मुझे आपको कहना चाहिए एज chairperson Indian Yoga Association Gujarat chapter. I really thank you and Mauli ji for the wonderful operation of this program. Why wonderful and great operation? Because her
समाज के पहलू के लिए आपने प्रश्न भी पूछे, एक्सपर्ट्स भी बुलाए। मैं आभारी हूँ आप सबका। अब मैं आभारी हूँ मित्तल जी का, जिन्होंने बहुत अच्छे से इस प्रोग्राम को इनिशिएट किया, तैयार किया, शुरू किया, हाँ, अपनी वाणी से। मैं आभारी हूँ डेफिनेटली भक्ति जी का, बहुत अच्छा बच्चों के लिए सुझाव दिया। अगर पेरेंट्स इस बात को, अगर डेफिनेटली कि बच्चे भी साथ में, हाँ, योगा में आए, योगा क्लासेस में आए, तो मुझे ऐसा लगता है बहुत कुछ परिवर्तन हो सकता है। डेफिनेटली आभारी हूँ राजीव जी का। योग का कोई उम्र नहीं होता, एंड द करेक्ट थिंग इज 80 साल का व्यक्ति योगा क्लास में मिलेगा, जिम में नहीं मिलेगा। व्हाट एक्सेलेंट वर्ड्स आई एम टेलिंग यू। डेफिनेटली विक्रम जी ने बताया, सूर्य निरंतर हमें ऊर्जा देता है खरबों साल से। सूर्य नमस्कार, वन वर्थ। आई एम डेफिनेटली थैंकफुल टू हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, जिन्होंने, हाँ, बहुत अच्छा स्लोगन दिया, थीम दिया, वन अर्थ वन हेल्थ। विक्रम जी ने बताया कि सूर्य के साथ कनेक्ट होना चाहते हो, डेफिनेटली सूर्य नमस्कार। आई रियली थैंक टू झील जी फॉर महिलाओं के लिए, हमारी बेटियों के लिए बहुत अच्छा कुछ सुझाव, कि जिनकी वजह से इनके जो शारीरिक जो तकलीफें हैं उनको वो कम कर सकते हैं। सो ऑल इन ऑल, इवन मौली जी, मनस्थिति, एक्सीलेंट थिंग, एंड जपा 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 योग, है ना। मुझे नहीं लगता कि एक आध मिनट में इतनी गहन बातें कोई कर सकता है। So I really thank to all the members, committee members, especially anchors, Hinal ji and Mauli ji, especially my vice chairpersons and committee members. I really thank to Central Committee, Gurudev Shri Shri Ravi Shankar ji जो चेयरमैन है। मैं उनका आभारी हूँ कि इंडियन योग एसोसिएशन के माध्यम से सभी को इकट्ठा करके जितने भी लोग सुनेंगे उनके जीवन में बदलाव लाने का जो प्रयास है वो अभूतपूर्व है। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, ग्रेट इनिशिएटिव, जो इतने सालों में नहीं हुआ, कुछ चंद सालों में, 10-11वां हमारा इंटरनेशनल डे ऑफ योगा है, कुछ साल में आज अभूतपूर्व सफलता हासिल की है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने, इंडियन योगा एसोसिएशन ने। सो यहाँ आज इतने सुंदर अवसर पर इतने सुंदर जवाबों को सुनते हुए मैं आभारी हूँ, मैं गदगदित हूँ, मैं रियली बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ कि इन सब के माध्यम से हम इतना सब कुछ कर पाए। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू जी।